Hello everyone, good evening, good afternoon, good morning wherever you are. So today we are going to start the new chapter Ind AS 1. So what is Ind AS 1? Ind AS 1 is presentation of financial statements. So this statement, this standard, it deals with presentation of financial statement. So what we are going to cover here, how financial statements are prepared. So basically once again we are going to do discussion which was similar to schedule 3 division 2. So let us come to presentation of financial statement. Can you listen to me carefully, those who are online? Is the voice good? Is the audio quality good? Okay. So you will find there are some repetitions which we have studied in our schedule 3, because this also talks about the same thing, that is presentation of financial statement. तो यहाँ पर भी हमें वही देखना है जो भी आपने शेड्यूल 3 में देखा था पिछले चैप्टर में. तो पहले मैं क्या करूँगा, इंड एस 1 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको बताता हूँ और फिर उससे रिलेटेड कुछ हम केस स्टडीज़ और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. बहुत ही इजी चैप्टर है, बिकॉज अगर आपने शेड्यूल 3 अच्छे से पढ़ा है तो काफ़ी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर मिलेगी. ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको बहुत नया चीज़ सीखने को मिलेगा. जो भी कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है अंडर इंड एस, दे हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एस 1. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, किन किन बातों का ध्यान में रखना है और प्रेजेंटेशन के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, वो सब हम इस चैप्टर में दिखने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? व्हाट आर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और व्हाट आर इंड एस? अगर कल को कोई आपसे पूछ लिया कि व्हाट आर इंड एस, तो आप बोलेंगे इंड एस आर द स्टैंडर्ड. ये इसका लीगल डेफिनेशन हो गया. वैसे आप बोल सकते हैं इंड एस आर द कन्वर्ज्ड वर्जन ऑफ IFRS. लेकिन अगर हम देखें इस स्टैंडर्ड के हिसाब से, सो दीज आर द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड बाय कंपनीज एक्ट अंडर सेक्शन 133. Ind AS are the standard prescribed under Companies Act section 133. So therefore that is Ind AS. Now we'll come to what does Ind AS 1 deal with. अब हमारा specific question है what does Ind AS 1 deal with. तो the name of the standard will give you the hint. This standard deals with meaning of financial statement. जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ what is financial statement. The standard deals with overall considerations in preparation and presentation of financial statement. So when you will become a manager, you have to take into account certain aspects when you are preparing financial statements, because your financial statement will go to shareholders. जो आप financial statement बनाते हैं वो shareholders के पास, बैंक के पास और बहुत सारे stakeholders के पास जाता है. They will take their decision on the basis of financial statement. So there are certain considerations we have to follow. This deals with elements of financial statement and the structure and content. यानी financial statement में क्या structure होना चाहिए, current, non-current, फिर उसका content क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या हमें present करना है, क्या क्या दिखाना है. All this will be covered by this standard 1, which is addressed by division 2 of schedule 3 to the Companies Act. Division 2 schedule 3 also deals with presentation and disclosure requirement of balance sheet, profit and loss account, statement of changes in equity, notes to account, etc. and this standard also deal with the same. So काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर है, इसलिए दोनों स्टैंडर्ड को साथ में रख के पढ़ना है, शेड्यूल 3 को और इंड एस 1 को. Next is what do you mean by financial statement? What do you mean by financial statement? तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बोलना है कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या नहीं. यस और नो में लिखना है या बोलना है जो यहाँ बैठे हैं कि कंपनी ने एक बजट बनाया है अगले साल के लिए कि हमें ये प्रोडक्शन करना है, इतना सेल करना है, इतना फंड्स रेज करनी है. क्या ये बजट
फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? क्या ये बजट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? यस और नो? तो बजट इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज बजट इज ओनली फॉर इंटरनल मैनेजमेंट पर्पस। फिर कंपनी ने बैंक को लोन लेने के लिए एक प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है 4 साल का। लोन लेने के लिए कई बार हम प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोजेक्टेड जो हम बनाते हैं और बैंक को लोन लेने के लिए हम देते हैं, जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाते हैं ऑफिसेज में, क्या हम उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल सकते हैं? यस और नो? नहीं। तो ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए हम बनाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? दीज आर दी स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ, स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन मतलब एक ऑर्डर में वो हम उसको बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर रहता है। जैसा भी आपने देखा होगा शेड्यूल 3 में हम एसेट्स को नॉन करंट एसेट फिर करंट एसेट में डिवाइड करते हैं, फिर नॉन करंट एसेट को भी हम और उसके डिवीजन करते हैं। लाइबिलिटी साइड में हम इक्विटी लिखते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी लिखते हैं, करंट लाइबिलिटी लिखते हैं। तो एक तरह से स्ट्रक्चर हो गया। इट्स अ स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। सो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें दो चीज़ें बहुत ही क्लियरली समझ में आती है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। फाइनेंशियल पोजीशन से आपको पता चलेगा एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटीज़ क्या हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से आपको पता चलता है प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कैश फ्लो कितना जनरेट हुआ है। तो जो P&L अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट है उससे परफॉर्मेंस पता चल जाता है, और जो बैलेंस शीट है उससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? It enables the users to make economic decisions about the entity. जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर इंड एस बनाते हैं, दिस इज मोस्टली फॉर डिसीजन मेकिंग बाय द इन्वेस्टर. It is not for tax department. It is not for some other legal compliances. The main objective of preparing financial statement is to help the users of financial statement to take economic decisions about the entity and to help the investors to take this decision. इन्वेस्टर को ये डिसीजन लेने में मदद मिले, इसके लिए हम क्या करते हैं? हम एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। व्हाट इज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो मैं आपको बताऊंगा 1-2 मिनट के बाद। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी सेपरेट और स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाते हैं? जब एक एंटिटी थ्रू सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर्स के साथ मिलकर काम करती है। दैट मीन्स व्हेन देयर इज अ पेरेंट कंपनी, देयर इज अ subsidiary, so we prepare consolidated financial statement of these two together as if it is a single entity to know what are the total resources of the group, what is the overall performance of the group. तो इसके लिए हम बनाते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन हम स्टैंड अलोन या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाते हैं। इट इज ओनली फॉर द रिस्पेक्टिव एंटिटी, इट्स ओनली फॉर द रिस्पेक्टिव एंटिटी। तो अगर एक कंपनी ए लिमिटेड है, उसकी सब्सिडरी बी है, तो इन दोनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मैं मिलाकर इकट्ठा करके बनाऊं तो उसको हम बोलेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए एंड इट्स सब्सिडरी बी। और अगर हम सिर्फ ए या सिर्फ बी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहले एंटिटीज क्या करती है? अपना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, और उसके बाद बी का सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ए के पास गया, उसके बेसिस पे ए अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। तो आपके सिलेबस में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्टैंडर्ड है 110,
सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्टैंडर्ड है 27, राइट। उसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट। कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ ले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंफॉर्मेशन रहती है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट आवर एसेट, अबाउट आवर लाइबिलिटीज, अबाउट इक्विटी। इक्विटी मतलब यहाँ पे शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जिसको इन डेज में हम अदर इक्विटी कहते हैं। देन इनकम और कैश फ्लो एटसेट्रा। सो दीज आर सम की इंफॉर्मेशन, की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसके बेसिस पे एक इन्वेस्टर या एक इकोनॉमिक यूजर डिसीजन लेता है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब उसमें हम क्या क्या प्रेजेंट करेंगे, तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है, थ्योरी क्वेश्चन, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है, कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप बोलेंगे एक बैलेंस शीट, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और उसी में हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी दिखाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जिसको हम इस चैप्टर में बोलेंगे SOCIE, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, ओके, डिसएग्रीगेशन दिया जाता है, यानी कि अगर बैलेंस शीट में मेन फिगर है तो उसका ब्रेकअप दिया जाता है, और कुछ सिचुएशंस में एडिशनल बैलेंस शीट भी दी जाती है, जो मैं आपको आगे अभी बताने वाला हूं कि एडिशनल बैलेंस शीट कब देनी पड़ती है। एडिशनल बैलेंस शीट कब देनी पड़ती है? यूजुअली आपने देखा होगा कि कंपनीज एक तो करंट ईयर का बैलेंस शीट देगी, एक प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट देगी, ये करंट ईयर का, प्रीवियस। लेकिन अगर कुछ सिचुएशन ऐसी हो जो इस इन डेज में लिखा है, तो कंपनी को एक और बैलेंस शीट देनी पड़ेगी। कंपनी विल हैव टू गिव वन मोर बैलेंस शीट ऑन 1/4/2019। तो सर ये कौन सी सिचुएशन है, ये हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय प्रॉफिट एज वेल एज फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विथ सूटेबल चेंजेस। तो अगर आप एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है अंडर सेक्शन 8 और आपको भी इन डेज एप्लीकेबल है, तो आप भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। ऑफ कोर्स उसमें कुछ चेंजेस अलाउड है, बट वो हमारे फिलहाल सिलेबस का स्कोप में नहीं है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, GPFS, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट जो है, जो कंपनी बनाती है अपने आगे के रिसोर्सेज की प्लानिंग के लिए, बिजनेस प्लानिंग के लिए, वो जनरल पर्पस नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ मैनेजमेंट के इंटरनल यूज़ के लिए होता है। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम बैंक को सबमिट करते हैं लोन वगैरह लेने के लिए, वो जनरल पर्पस नहीं होता है, ठीक है। तो जनरल पर्पस मतलब यहाँ पर हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो इन जनरल कोई भी यूजर्स यूज़ कर सकता है। यूजर्स कैन नॉट डिमांड कि आप इसी फॉर्मेट में ये इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करके दीजिए। अगर आप स्पेसिफिक यूज़र के हिसाब से अगर बनाने लग गए तो जनरल पर्पस नहीं है। जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी बैलेंस शीट होती है, P&L अकाउंट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, लेकिन वो एक खास बैंक के फॉर्मेट में होता है ताकि बैंक उसको एनालाइज कर सकें। उसी तरह जो मैनेजमेंट बजट्स बनाती है, तो हो सकता है उसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस बनता हो, कैश फ्लो बनता हो, बट वो मैनेजमेंट अपने हिसाब से बनाती है उनको डिसीजन मेकिंग के लिए। तो दोज आर नॉट जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको यूजुअली सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हम बोलते हैं, आर दोज इंटेंडेड टू मीट द नीड्स ऑफ द यूजर्स, विच यूजर्स who are not in a position to require an entity to prepare reports
टेलर टू देयर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नीड, यानी इन्वेस्टर उनके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी को फोर्स नहीं कर सकती कि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह से सिर्फ बना के दो। ये कंपनी बनाती है और इन जनरल ये कोई भी यूज़र यूज़ कर सकता है। सो दीज आर नॉट कस्टमाइज्ड, दीज आर नॉट कस्टमाइज, कस्टम मेड नहीं है, टेलर मेड नहीं है, आपके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं दोज आर नॉट कवर्ड बाय इंड एस, ये सबके लिए है। नाउ एक चीज मैं बता दूं कि इस स्टैंडर्ड में कुछ कुछ जगह पे आपको रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट के लिए कहा गया है। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब यू हैव टू गो बैक पिछले सालों से। सपोज एक कंपनी 2020-21 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है और कोई एक एरर कमिट हुआ है 2017-18 में, एरर हो गया, तो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम क्या करते थे, इसी साल के पिनल अकाउंट में एक लाइन आइटम ऐड कर देते थे, प्रायर पीरियड एरर। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, आपको एरर इस साल हुआ है तो इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाना है, उसको एडजस्ट करना है, फिर उसका इफेक्ट 2018-19 में कैरी करना है, फिर उसका इफेक्ट 2019-20 में कैरी करना है, फिर उसका इफेक्ट 2020-21 में। इसका मतलब है आपको 3, 4, 5, 6, 7 साल पीछे जाना पड़ सकता है, करेक्ट। उसी तरह अगर कोई कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी वॉलंटरली चेंज करती है, वॉलंटरली, या फिर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एस रिक्वायर्स दैट यू शुड चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रॉम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो उस केस में हमें अर्लीस्ट पीरियड से जाकर रेक्टिफाई करना पड़ता है, अर्लीस्ट। तो अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी 10 साल पहले परचेस की हो और कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो गई, तो वहाँ जाओ 10 साल 8 साल पुराना और उसको चेंज करते करते आज यहाँ पर लेकर आना है। तो अब आपको समझ में आएगा, इमीडिएटली आप रिएक्ट करेंगे कि सर ये तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, ये तो बहुत इम्प्रैक्टिकल है। अगर मुझे 8 साल 6 साल 5 साल पुराना एडजस्टमेंट करना पड़े तो ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है। बात तो आप सही कह रहे हैं, इसीलिए स्टैंडर्ड ने आपको एक रिलैक्सेशन दिया है। स्टैंडर्ड हैज प्रोवाइडेड यू रिलैक्सेशन कि अगर इतना पीछे जाकर एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं है तो उसको हम बोलेंगे इम्प्रैक्टिकेबल। लेकिन आपको पूरा एफर्ट लेना है, पूरी कोशिश करनी है कि आप रेट्रोस्पेक्टिव कर सकें। नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ आफ्टर टेकिंग ऑल द पॉसिबल एफर्ट, देन वी विल कॉल दैट रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट इज इम्प्रैक्टिकेबल। तो फिर जहाँ से पॉसिबल है वहाँ जाकर आपको उसको एडजस्ट करना है। तो इसलिए इन्होंने इम्प्रैक्टिकल वर्ड को पहले ही डिफाइन कर दिया, ठीक है। इम्प्रैक्टिकेबल को डिफाइन कर दिया तो यानी कोई बहाना नहीं बना सकता है। पहले आप कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर जितना हो सके उतना करना, ठीक है। अप्लाइंग अ रिक्वायरमेंट इज इम्प्रैक्टिकेबल where the entity cannot apply it after making every reasonable effort to do so। यानी पहले आपको कोशिश दिखानी है कि हमने कोशिश की, कोशिश अगर सक्सेसफुल हो गई तो ठीक है। सपोज हम 2016-17 से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब मेरे पास वो डेटा अवेलेबल नहीं है या वो डेटा हम अभी नहीं निकाल सकते हैं। आप बोलते हैं 2019-20 से पॉसिबल है, तो स्टैंडर्ड कहता है ठीक है भाई, चलो माफ़ किया, 2019-20 से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है, बिकॉज बिजनेसमैन को अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे तो फिर वो स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उसका पूरा टाइम एनर्जी उस स्टैंडर्ड को फॉलो करने में चला गया और बिजनेस में अगर उसका ध्यान नहीं जा पा रहा है बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है, बस आप ढूंढने चले गए 4 साल पुराना डेटा, तो ही मे नॉट
agree to the standards. So that is why sometime we have to give some relaxation to users or the businessman. Now मटीरियल, ये जो स्टैंडर्ड है मटेरियल ट्रांजेक्शन्स पे अप्लीकेबल है. कोई भी स्टैंडर्ड जो होता है मटेरियलिटी को ध्यान में रखता है. अगर मान लो कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ रुपया है, तो क्या 200 रुपये का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अलग से प्रेजेंट करना होगा आपके P&L अकाउंट में? आप बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे, 100 करोड़ का है, 200 का प्रिंटिंग स्टेशनरी को आप अदर एक्सपेंस में डाल दो. किसी भी यूज़र का डिसीजन थोड़ी अफेक्ट होने वाला है इसकी वजह से. इज इट राइट? आप इसको अदर एक्सपेंस में डाल दो, कोई माइंड नहीं करेगा. इसलिए उन्होंने क्या किया, मटेरियल वर्ड को डिफाइन किया गया. लेकिन ये वर्ड मटेरियल जो है ये बड़ा सब्जेक्टिव है. और एक चीज़ बता दूं, मटेरियल वर्ड की जो डेफिनेशन है उन्होंने उसको अमेंड भी किया है. मटेरियल वर्ड जो था पहले और अभी में थोड़ा अमेंडमेंट हुआ है. ऑफ कोर्स द बेसिक जो उसका एसेंस है वो सेम रहता है. मटेरियल का मतलब कि ऐसा इंफॉर्मेशन जो किसी भी यूज़र को इन्फ्लुएंस कर दे, एनी इंफॉर्मेशन विच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सच इंफॉर्मेशन इज मटेरियल. ओके, बट फिर भी हम इंस्टीट्यूट का डेफिनेशन पढ़ते हैं. ये डेफिनेशन रिवाइज हुआ था मटेरियलिटी का, तो इसको आप इम्पॉर्टेंट टिक करना, बिकॉज ये एक तरह का अमेंडमेंट है. इम्पॉर्टेंट लिख दिया. इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज मटेरियल. सपोज आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज मटेरियल, सो इंफॉर्मेशन इज मटेरियल. इंफॉर्मेशन मटेरियल तब है इफ ओमिटिंग, मतलब उसको आपने दिखाया ही नहीं, मिसस्टेटिंग, गलत प्रेजेंट कर दिया, और ऑब्सक्योरिंग. ऑब्सक्योरिंग का मतलब होता है हाइडिंग, यानी आपने उसको किसी और अकाउंट हेड के अंदर उसको डाल दिया तो अलग से नहीं दिख रहा. आप बोल रहे हैं हमारी बुक्स में, लेकिन वो दिखता नहीं है. और ऑब्सक्योरिंग, it could reasonably expected to influence decisions that the primary users of general purpose financial statement make on the basis of those financial statement. तो ऐसे इंफॉर्मेशन इसको ओमिट करने से, गलत तरह से प्रेजेंट करने से या हाइड करने से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्राइमरी यूजर्स होते हैं उनका इकोनॉमिक डिसीजन अफेक्ट हो सकता है. यानी अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आपका डिसीजन क्या है, इन्वेस्ट करना है नहीं करना है. अगर आप बैंकर हैं तो आपका डिसीजन है कि लोन देना है नहीं देना है. तो ये इन्फॉर्मेशन अगर ओमिट कर दिया जाए, गलत तरह से प्रेजेंट किया जाए या हाइड किया जाए, तो हो सकता है कि प्राइमरी यूजर्स का डिसीजन चेंज हो जाए, अफेक्ट हो जाए. विच प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक रिपोर्टिंग एंटिटी. तो दैट इज इंफॉर्मेशन इज मटेरियल. अगर उसके ओमिट होने से, हाइड करने से या मिस स्टेटमेंट करने से जो प्राइमरी यूजर्स है उनका डिसीजन चेंज हो सकता है. मटेरियलिटी इज अ वेरी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. ओके, ये याद रखना. मटेरियलिटी जो है ये काफ़ी सारा चीज जजमेंट पे डिपेंडेंट है. इसमें सब्जेक्टिविटी होती है. एक पर्सन के लिए कुछ मटेरियल हो सकता है, दूसरे के लिए मटेरियल नहीं हो सकता है. एक सिचुएशन में कोई चीज़ मटेरियल हो सकती है, दूसरे सिचुएशन में वो चीज़ मटेरियल नहीं हो सकती है. ओके, तो बहुत साल पहले मैं ऑडिट करने के लिए सपोज टाटा मोटर्स में जाता था. आपने नाम तो सुना ही होगा, ये कंपनी में मैं ऑडिट करने जाता था. तो यहाँ पर जो फिगर्स होते थे सेल्स के, 25 करोड़ का कोई इनवॉइस दिखता है, कोई 20 करोड़ का कोई इनवॉइस है, कोई 5 करोड़ का इनवॉइस है. एक्सपेंसेस के फिगर कोई 5 करोड़ का एक इनवॉइस दिखता था, कुछ परचेस किया, कोई 2 करोड़, कोई 1 करोड़, कोई 50 लाख, ऐसे बड़े बड़े फिगर. फिर एक मैं छोटी कंपनी में ऑडिट करने गया जिसका नाम मुझे अगर याद आ रहा है PML था. ठीक है,
पूरा नाम नहीं लिखूंगा, अगर उन्होंने कभी सुन लिया तो फिर मेरे ऊपर केस करेंगे, बोलेंगे क्या हमारी मानहानि कर रहे हैं। तो शॉर्ट फॉर्म है, ढूंढ लेना कभी। तो इसको ऑडिट करने गया तो इसकी टोटल टर्नओवर ही 2 करोड़ की थी। टोटल टर्नओवर साल भर का 2 करोड़। इनका एक एक इनवॉइस 20-20, 30-30, 50 करोड़ का भी होता था, क्योंकि उनके डीलर एक साथ बड़े बड़े ऑर्डर्स देते थे। तो अब ये सोचो कि अगर मैं इस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ तो मेरी मर्टिलिटी लिमिट डिफरेंट होगी। मैं यहाँ पर कोई 30 लाख 40 लाख का कोई एक्सपेंस का फिगर रहा तो उसके पीछे मैं बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाऊंगा। जिस कंपनी का टोटल टर्नओवर कितना 1000 करोड़ है, प्रॉफिट कितने 1000 करोड़ है, उसमें कोई 2 लाख 5 लाख 10 लाख का फिगर मटल नहीं होता है। लेकिन अगर मैं इस कंपनी की ऑडिट कर रहा हूँ जिसका टर्नओवर ही 2 करोड़ है, तो यहाँ पे 5 लाख 10 लाख रुपए के फिगर भी मटेरियल हो जाते हैं। और ऐसा मेरे साथ हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात है कि बैक टू बैक 2 ऑडिट मैंने किया था एक ईयर में। पहले टाटा मोटर्स का किया, उसके बाद पीएमएल का किया। तो मर्टिलिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर और मैग्नीट्यूड ऑफ द इंफॉर्मेशन और बोथ। अभी मान लो ऑडिटर फीस है, तो यहां पर आपको अमाउंट नहीं देखनी है, यहाँ पे अमाउंट नहीं देखनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑडिट फीस अलग से प्रेजेंट करना ही है। ऑडिट फीस अलग से प्रेजेंट करना ही है, क्योंकि कंपनीज एक्ट में लिखा ऑडिटर को जो पेमेंट करते हैं अलग से करते हैं। या कभी मान लो आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जिसको मैं पीपी लिखता हूँ, अब ये कंपनी का बिजनेस तो नहीं है लेकिन ये प्रॉफिट हो गया है, तो ऐसे आइटम को हो सके तो आप अलग से दिखाओ। ठीक है, तो नेचर पे भी डिपेंड करता है, उसकी अमाउंट पे भी डिपेंड करता है। अब ये मान लो ये एग्जाम्पल में आपने कोई पीपी सेल किया और प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपये, टोटल कंपनी का मान लो टर्नओवर है 20,000 करोड़, 5,000 करोड़, तो उस केस में भले इसका नेचर ऐसा है कि हमारा रेगुलर बिजनेस के सोर्स से नहीं आया है, बट फिर भी इसकी मैग्नीट्यूड इतनी कम है कि अब बोलते हैं अब रहने दो। ठीक है, अलग से दिखाने की जरूरत नहीं, अदर इनकम में डाल दो। और बोथ, तो ये आपको जजमेंट लगाना है। जब आप सीए बनने के बाद आप 2 में से किसी एक कुर्सी पे बैठेंगे, सीए बनने के बाद हम 2 में से किसी एक कुर्सी पे बैठते हैं। या तो आप इस तरफ बैठेंगे मैनेजमेंट की कुर्सी पे, या फिर इस तरफ बैठेंगे ऑडिटर की कुर्सी पे। ठीक है, तो आमने सामने आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, तो मैनेजमेंट और ऑडिटर दोनों को जजमेंट लगाने होते हैं। मैनेजमेंट लगाता है, फिर ऑडिटर अपना जजमेंट लगाता है कि इसने मटेरियल आइटम प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है या नहीं। तो ये चैप्टर आपको बहुत ऐसा जजमेंट लगाने के लिए कह रहा है जो भी से आपको सीखना है। उसी तरह जब आप एग्जाम में आंसर लिखते हैं तो कई बार हम जजमेंट लगाते हैं कि ये पॉइंट लिखें या नहीं लिखें। मेरे पास समय 3 घंटे हैं, लिखने के लिए बहुत सारा कंटेंट है, क्या लिखें, क्या मटेरियल चीज़ लिखें। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि पहले जो एकदम मेन पॉइंट है, जो एकदम आपका स्ट्रेंथ है, वो सामने पहले प्रेजेंट कर देना एग्जाम में। An entity assesses whether information either individually or in combination with other information is material। तो आपको ये भी देखना है कि अगर कुछ ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली मटेरियल हो सकते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन कॉम्बिनेशन विथ अदर इंफॉर्मेशन मटेरियल हो सकते हैं। अगेन यहाँ पे जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगा कि इंडिविजुअल मटेरियल है या इन कॉम्बिनेशन विथ अदर इंफॉर्मेशन मटेरियल है। एक प्लांट एंड मशीनरी मटेरियल है या पूरा फैक्ट्री मटेरियल है। समझ गए, एक प्लांट एक मशीन मटेरियल है या पूरे जो फैक्ट्री में सारी मशीन्स लगी है वो मटेरियल है। एक एग्जांपल दिया मैंने, इज मटेरियल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कोई आइटम मटेरियल है कि नहीं, you have to check in terms of financial statement as a whole. What is, when is information obscured? ये एक नया पैराग्राफ उन्होंने ऐड किया है मटेरियल की डेफिनेशन में। तो मैंने लिखा है आपको,
कि इंफॉर्मेशन ऑब्सक्योर्ड कब है। ऑब्सक्योर्ड मतलब हिडन। जब आप बड़ी कंपनीज में ऑडिट करेंगे तो जनरली जो मैंने ऑब्जर्व किया था, क्योंकि मैंने बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज के भी ऑडिट किए हैं, एक बहुत बड़ी फर्म में था मैं जो आज इंडिया की बिग 4 कहलाती है, तो हमने जब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में ऑडिट करते थे तो हम देखते थे मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में पब्लिक के साथ, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता था। वो कोशिश करती थी कि इन्फॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि कुछ कुछ चीज़ें हाइड हो जाए। तो जितना आप इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देंगे उतना लोग आपसे ज़्यादा सवाल करेंगे, उतना ज़्यादा आपको स्क्रूटिनाइज करेंगे, आपके डिसीजन को चैलेंज करेंगे। एजीएम में आके आदमी चिल्लाता है कि आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा करते थे। अब शेयर होल्डर को बोलने में क्या था, जो आदमी मैनेजमेंट संभालता उसको पता है कि भाई ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, लेकिन वो फिर उनको एक और मौका मिल जाता है। लेकिन हम क्या है, हम ऑडिटर हैं, हमें ये भी देखना है कि कोई इन्फॉर्मेशन जिनको प्रेजेंट करना था, अलग से दिखाना था, उसको कहीं हाइड करने की कोशिश तो नहीं की गई है। तो व्हाट इज इंफॉर्मेशन ऑब्स्क्योर, व्हेन इज इंफॉर्मेशन ऑब्स्क्योर्ड? तो इंफॉर्मेशन इज ऑब्स्क्योर्ड if it is communicated in a way that would have a similar effect for primary users of financial statement to omit or misstating that information। यानी कि इंफॉर्मेशन को इस ढंग से प्रेजेंट किया जाता है कि उसका इफेक्ट एज गुड एज इट इज सिमिलर टू ओमिटिंग और मिस स्टेटमेंट। सिमिलर टू ओमिटिंग और मिस स्टेटमेंट यानी कि उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या है कि इंफॉर्मेशन प्रॉपरली कन्वे नहीं किया गया। ओके, तो आप मुझे पूछेंगे सर वेयर डू यू लिव, सर आप कहाँ रहते हो, तो मैं बोलूँगा यही अपना नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ। ठीक है, हो गया इन्फॉर्मेशन, कुछ समझ में आया? नहीं। अब नॉर्थ इंडिया में कहाँ ढूंढोगे मुझे तुम? तो ये एक तरह से इंफॉर्मेशन को हाइड करने की कोशिश। आप पूछेंगे सर आपकी इनकम क्या है, पूछो, मैं बोलूँगा बस ठीक है, दाल रोटी चल जाती है, कभी कभी ब्रेड भी खा लेते हैं, इतनी इनकम हो जाती है। तो क्या क्या मैंने आपको इन्फॉर्मेशन सही ढंग से बताया या इट इज़ एज गुड एज नहीं बताया? बोलो ना। तो जब आप ऑडिट करेंगे बड़ी बड़ी कंपनीज में तो आप देखेंगे कि वो जो नोट्स टू अकाउंट या कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह से ड्राफ्ट करते हैं कि उसमें इंफॉर्मेशन को वो हाइड करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ एज गुड एज ओमिशन। उनको लगता है कि अगर उसको हमने सामने दिखा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। अब एक बार एक कंपनी में ऑडिट कर रहा था, तो सपोज टाटा मोटर्स का मैं फिर से एग्जांपल देना चाहता हूँ, आप बोर मत होना, क्योंकि यहाँ मैंने ऑडिट किया था, काफ़ी स्टैट्यूटरी ऑडिट किया था। अभी मान लो इनके पास है एक कमर्शियल व्हीकल डिवीज़न है, यानी कि ये जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं ये इनके चेसिस ट्रक्स में, बसेस में जो आप देखते हैं बड़ी बड़ी बसेस, उनके लिए बनाती है। और एक इनका पैसेंजर व्हीकल, मुझे उम्मीद है ये लोग मुझे माफ़ कर देंगे, मैं इतने सालों बाद इनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पैसेंजर व्हीकल में इनके ये जो कार्स होती हैं, अलग अलग टाइप की कार्स आप रोड पे देखते हैं। टाटा मोटर्स की कार, एक इंडिगा है, इंडिगो है, और भी बहुत सारे हैं। एल्ट्रोज है, वो आईपीएल के मैचेस में वो रखे रहते थे डेमो के लिए। हैरियर है, तो इसको बोलते हैं पैसेंजर व्हीकल। उन्होंने क्या करना चाहिए, सेगमेंट रिपोर्ट में उनको क्या करना चाहिए, कम से कम 2 सेगमेंट तो दिखा दो, 2 सेगमेंट तो दिखा दो, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल काफ़ी अलग अलग प्रोडक्ट हो गए। तो अब इंफॉर्मेशन अगर उनको हाइड करना है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सेगमेंट दिखाया, ऑटोमोबाइल्स, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, ऑटोमोबाइल सेगमेंट। अब उसमें दोनों को मर्ज कर दिया, ऑटोमोबाइल सेगमेंट, उसमें दोनों को मर्ज कर दिया है। उनका कहना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑटोमोबाइल ही तो है,
इसमें भी आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसमें भी जाते हैं, क्या दिक्कत है? इसमें भी आप मैन मटेरियल मनी, मैन मटेरियल ढूंढ लेके जा सकते हैं, इसमें भी कुछ मैन और कुछ पीछे डिक्की में मटेरियल लेके जा सकते हैं, दोनों की पोल्यूशन टेस्टिंग होती है, ठीक है? तो एक ही है। तो ये हो गया इंफॉर्मेशन ऑब्सक्योर करने का तरीका। एक तरफ आप उसको बोल भी रहे हो कि ऑटोमोबाइल है, सही भी है, ऑटोमोबाइल ही तो है, कार भी ऑटोमोबाइल है, ट्रक भी ऑटोमोबाइल है, लेकिन एज अ यूज़र हमारे लिए अलग अलग सेगमेंट को जानना जरूरी है, क्योंकि दोनों में रिस्क अलग है, प्रॉफिटेबिलिटी अलग है, पैसेंजर कार का कंपटीशन किसी और ही लेवल पे अभी चला गया है, जबकि कमर्शियल व्हीकल में अभी भी मोनोपोली जैसी स्थिति है। तो आइडियली क्या होना चाहिए, कमर्शियल व्हीकल। पैसेंजर में भी फिर क्या अलग अलग आप कर सकते हो, स्मॉल कार्स, सेडान्स, लग्जरी कार्स, जैगवार अलग दिखाओ, क्योंकि सबका फिर रिस्क रिटर्न अलग हो जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑब्सक्योरिंग। ये एग्जांपल मैंने सिर्फ आपको ये पैराग्राफ समझाने के लिए दिया, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था इसके पीछे, लेकिन दिमाग में आपको एक पिक्चर क्लियर हो गई कि ऑब्सक्योर हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है? फिर कुछ एग्जाम्पल और लिखे हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन थियरी क्वेश्चन के लिए इसको लिखना, अगर वो पूछेंगे राइट अ नोट ऑन मटेरियलिटी एंड देन गिव फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कमस्टांसेस विच में लीड इन मटेरियल इंफॉर्मेशन बीइंग ऑब्सक्योर्ड। तो आप लिखना कि मटेरियल इंफॉर्मेशन को आप कैसे हाइड करते हो। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ मटेरियल आइटम, ट्रांजेक्शन और अदर इवेंट इज डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्क्लोज किया है बट द लैंग्वेज यूज्ड इज वेग और अनक्लियर। इस ढंग से आपने उसको प्रेजेंट किया है कि इन्वेस्टर को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, ठीक है? कंपनीज कभी कभी उनके एनुअल रिपोर्ट में कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज कर सकती है, और कई बार ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि इन जनरल इन्वेस्टर को, जनरल यूजर्स को नहीं समझ में आएगा। तो ये हो गया, एक तरफ से वो बोल रहे कि हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे भी दिया, और दूसरा हो सकता है इस तरह से लिखें कभी कि आपको उसका मीनिंग क्लियर नहीं हो सकता है। तो आपको मैं क्या करूँगा, आज एक टास्क दूंगा, आप कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट उठाओ, उसको देखो, उसके नोट्स टू अकाउंट को देखो, और कई बार आपको कन्फ्यूजन होगा कि इस लाइन का क्या मतलब है, राइट? और हो सकता है वो इंटेंशनली वैसा किया गया हो कि आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि उनको एक लीगल कंप्लायंस देना है तो कुछ डिस्क्लोजर्स देने हैं, लेकिन डिस्क्लोजर ऐसा भी नहीं देना है कि लोगों को पता चल जाए। खासकर ये चीज़ जो है ये आपको सेगमेंट रिपोर्ट में बहुत देखने मिलेगी। सेगमेंट रिपोर्ट में क्या होता है, कंपनी जो है अपने सेगमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, तो आइडियली उनके जितने सेगमेंट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, लेकिन वो क्या करती है, सेगमेंट्स को ऐसे मिक्स कर देती है, कम से कम देने की कोशिश करती है ताकि आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन न मिले, ठीक है? उसके बाद सेकंड तरीका क्या है इंफॉर्मेशन को ऑब्सक्योर करने का, हाइड करने का। ये मैं आपको आइडियाज़ नहीं दे रहा हूँ, कल को आप इधर मैनेजमेंट वाली सीट में बैठ गए हैं तो आपको आइडियाज़ मिल रहे हैं, ठीक है, कि कैसे ऑब्सक्योर करना है, और कल को आप इधर ऑडिटर वाली सीट में बैठ गए हैं तो आपको अभी आइडिया मिल रहे हैं कि कैसे मैनेजमेंट को पकड़ना है, ठीक है? जितना ज़्यादा पकड़ पाओगे उतना ज़्यादा फीस अगली बार ऑडिट के लिए मिल जाएगा। सो नाउ सेकेंड तरीका ऑब्सक्योर करने का, information regarding a material item, transaction or other event is scattered throughout the financial statement, scattered throughout the financial statement। कुछ इंफॉर्मेशन आपने बैलेंस शीट में दे दी, सपोज पीपीई का कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ दे दिया, कुछ नोट्स में दे दिया। नोट्स में भी क्या है, अलग अलग दूरी दूरी पे, एक नोट नंबर 1 में अकाउंटिंग पॉलिसी में कुछ दे दिया, फिर एक नोट नंबर 35 में कुछ दे दिया, एक नोट नंबर 39 में। तो बेचारा इन्वेस्टर को एक जगह पे इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती है, तो कई बार वो
कंफ्यूज हो जाता है। आपका पर्पज़ ही वही है कि उसको होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन एक जगह पे यहाँ पे नहीं मिले, अदरवाइज वो क्या करेगा, दिमाग लगाएगा फिर कि ऐसा होता तो क्या होता। डिसिमिलर आइटम, ट्रांजैक्शन और अदर इवेंट्स आर इनअप्रोप्रिएटली एग्रीगेटेड, ये भी आपको देखने मिलेगा। अगर आप गौर से एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो डिसिमिलर आइटम्स को एग्रीगेट कर देते हैं। यानी कि एग्जाम्पल दूंगा ऐसा, कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो एंड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को अलग अलग दिखाना है आपको बैलेंस शीट में। हो सकता है उसको मर्ज कर दे, उनको लगे कि ये भी प्रॉपर्टी प्लांट है, ये भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब आप इसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, रेंटल के लिए यूज़ कर रहे हैं, फ्यूचर में कैपिटल एप्रिसिएशन होगा उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। अब शेयर होल्डर जो है वो सवाल करता है एनुअल जनरल मीटिंग में कि सर मैंने आपको इन्वेस्ट किया आपकी कंपनी में कि आप उसको बिजनेस के लिए यूज़ करो पैसों को, आपने मेमोरेंडम में लिखा है कि वी आर गोइंग टू डू दिस काइंड ऑफ बिजनेस, और आप कर क्या रहे हो, आपने लैंड और बिल्डिंग खरीद के रख दिया या रेंट पे दे दिया, वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था आपका। ठीक है, तो डिसिमिलर आइटम को कई बार ऐड कर दो तो इंफॉर्मेशन हाइड हो जाएगी, और सिमिलर आइटम्स को डिसएग्रीगेट कर दो। ऐसा भी कर सकते हैं कि जो सिमिलर आइटम है उनको ऐड करना चाहिए तो हमें उसका इफेक्ट समझ में आएगा, उसको आपने अलग अलग कर दिया तो ये दिक्कत हो सकती है। सिमिलर आइटम्स, ट्रांजैक्शन और अदर इवेंट्स आर इनअप्रोप्रिएटली डिसएग्रीगेटेड, तो जिसको एग्रीगेट करना था उसको आपने डिसएग्रीगेट कर दिया। अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल देता हूँ सेगमेंट रिपोर्ट का। अभी सेगमेंट रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि सिमिलर आइटम्स को आप एग्रीगेट कर सकते हो। जैसे मान लो आप सोप्स बेचते हो, डिटर्जेंट है, क्रीम है, ठीक है, लोशन है। अब ये है तो सब एक ही पर्सनल केयर प्रोडक्ट, तो इफेक्टिवली क्या है कि मैं एज एन इन्वेस्टर, मेरे को इंडिविजुअली इनमें इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, इनको मैं एज एन इन्वेस्टर क्यों एनालिसिस कर रहा हूँ, वो तो मैनेजमेंट का काम है। लेकिन उन्होंने क्या किया, सेगमेंट रिपोर्ट में सब डाल दिया, तो मैं समझने की जगह में और कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार। दैट इज कॉल्ड सिमिलर आइटम्स। इंड AS 108 बोलता है इन सबको मर्ज कर दो, नहीं जरूरत है इतना डिटेल करने की भी। बहुत ज़्यादा डिटेल देने से क्या होता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, किसी को भी कंफ्यूज करना हो तो उसका एक लाइन का सवाल का जवाब 20 लाइन में देना है। ठीक है, वो समझ ही नहीं पाएगा कि आपके सवाल का जवाब क्या था। तो यही काम है। कई बार अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, नोट्स टू अकाउंट में इतना लंबे लंबे पैराग्राफ लिखो, इतने भारी भरकम शब्द यूज करो कि आदमी जो है कंफ्यूज हो जाएगा। इन जनरल, ऑफ कोर्स देयर आर स्पेशलिस्ट हु रीड दोज, अंडरस्टैंड, बट इन जनरल पीपल माइट गेट कंफ्यूज्ड। Next is the understandability of the financial statement is reduced as a result of material information being hidden by immaterial information to the extent that primary user is unable to determine what is material. ठीक है, if you can't give them material information, then you give them so much of information कि material और immaterial के बीच में डिस्टिंक्शन करना उसके लिए मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो अभी आप कभी कोशिश करके एनुअल रिपोर्ट पढ़ने की कोशिश करो। इतना सारा वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे वो कई बार देते हैं कुछ कुछ कंपनीज जानबूझकर, कि आप पता नहीं कर पाएंगे इसमें मटेरियल क्या है और इमटेरियल क्या है। ओके, टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, ओवरलोड। देन एक पैराग्राफ में पढ़ता हूँ आपके लिए, डेफिनेशन वाला, बहुत जल्दी से पढ़ेंगे, आगे काम आएगा। एक चीज़ और बता दूं कि ये पूरा चैप्टर्स लिंक्ड है, तो जैसे जैसे एक एक पैराग्राफ आगे जाते जाएगा इसका टर्म अगले पैराग्राफ में आगे यूज़ होगा। ठीक है, और ये चैप्टर वापस अगेन आगे के बहुत सारे चैप्टर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेजेंटेशन कैसे करना है यहाँ पे दिया गया है।
तो आप मुझे बताओ कि आपने नोट्स वर्ड पहले कभी सुना है? नोट्स, नोट्स टू अकाउंट। हम बैलेंस शीट में, पीएनएल अकाउंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। कई सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं आती है, कई सारी चीज़ें बैलेंस शीट में एक सिंगल फिगर दिखता है, जैसे अदर इक्विटी या फिर मान लो इन्वेंट्री, डेटर, तो उसका हमें ब्रेकअप देना पड़ता है एज रिक्वायर्ड बाय इंड एस और बाय द लॉ। उसके बाद कई कई जगह हमें नैरेटिव इंफॉर्मेशन, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी में हमें सिर्फ लिखना होता है कंपनी की पॉलिसी क्या थी, कंपनी इस एरिया में क्या करती है, रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन देना पड़ता है जो बैलेंस शीट में नहीं है, डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं स्टैंडर्ड्स में जो बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट में नहीं है। तो उसके लिए सारा इंफॉर्मेशन कहाँ दिया जाता है? नोट्स में। सो नोट्स कंटेन इंफॉर्मेशन in addition to that presented in the balance sheet, statement of profit or loss and statement of cash flow। तो जो इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं है वो नोट्स में दिए जाते हैं। उसके अलावा नोट्स प्रोवाइड नैरेटिव डिस्क्रिप्शन, लाइक फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग पॉलिसी, देन डिसएग्रीगेशन ऑफ आइटम्स प्रेजेंटेड इन दो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं हम? एक फिगर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अभी आपने शेड्यूल 3 का क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में बहुत सारे एसेट हैं, उनकी ओपनिंग वैल्यू क्या थी, एडिशन क्या हुआ, सेल क्या हुआ, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, डेप्रीशिएशन क्या है, नेट ब्लॉक क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ देना पड़ता है। बैलेंस शीट में लिख देते हैं इन्वेंट्री, फिर इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल कितना है, WIP कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, कोई और इन्वेंट्री कितना है, उसका डिसएग्रीगेशन वहाँ देते हैं। बैलेंस शीट में लिख देते हैं डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल में गुड कितने हैं, और जहाँ पर आपका क्रेडिट रिस्क है, जो इम्पेयर हो गए हैं, उन पे जो हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट किया है या अलाउंस फॉर बैड डेट किया है, वो कहाँ देंगे? वो हम नोट्स में देंगे। और उसके अलावा बहुत सारे और इन्फॉर्मेशन देते हैं जो हमने ऊपर कहीं नहीं दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटेड पार्टी आपको डिस्क्लोजर लगता है, कौन सा स्टैंडर्ड है बोलो? इंड AS 24। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में हमें डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं, लगभग सारे स्टैंडर्ड में डिस्क्लोजर्स रहते हैं, वो सब यहाँ पर आ जाते हैं। तो नोट्स टू अकाउंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कंपनी को नोट्स में भी हर वो इंफॉर्मेशन देना जरूरी है विच इज़ रिक्वायर्ड बाय इंड AS और बाय द लॉ। अगर नहीं देंगे तो इसका मतलब है उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड AS कंप्लायंट नहीं है। तो मैनेजमेंट कैन नॉट से दैट आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इंड AS कंप्लायंट। अगला जो डेफिनेशन है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का है, OCI। इसके ऊपर शेड्यूल 3 डिवीजन 2 इस चैप्टर में काफ़ी डिस्कशन हो गया है, ठीक है। तो एक बार वापस मैं आपको बता दूं, जो हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट बनाते हैं उसमें 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड सेक्शन 2 इज कॉल्ड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये यूजुअली अनइंटेंशनल होते हैं, यानी मैनेजमेंट ने इसके लिए अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट उतना डेडिकेट नहीं किया है जितना वो पीएनएल अकाउंट वाले आइटम्स के लिए करते हैं। बट ये भी इनकम है, ये इनकम की डेफिनेशन को मीट करते हैं। इंक्रीज इन द नेट एसेट, इंक्रीज इन द नेटवर्थ, दैट इज इनकम अदर देन ट्रांजेक्शन विद द ओनर। तो इसको भी दिखाना जरूरी है। तो अब इंड AS 1 में और शेड्यूल 3 डिवीजन 2 में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट में सेक्शन 2 में हम OCI के आइटम दिखाएंगे। दीज आर अदर इनकम, ओके, जिसको हम बोलते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सो दिस विल कंप्राइज ऑफ आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस। तो इसमें भी इनकम और एक्सपेंस वाले आइटम आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिवैल्यूएशन, गेन और लॉस। तो गेन हुआ तो इनकम, लॉस तो लॉस। फेयर वैल्यू, गेन और लॉस। कुछ कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उसके फेयर वैल्यू, गेन और लॉस को हम OCI में दिखाते हैं। हमने आपको
पिछले चैप्टर में बता दिया है. So it comprises item of income and expense including reclassification adjustment that are not recognized in P&L account. तो इनको P&L account में recognize अभी नहीं किया गया है as required by or as permitted by other Ind AS. As required by or as permitted by other Ind AS. जैसे फॉर एग्जाम्पल Ind AS 16 वो कहता है रिवैल्यूएशन रिजर्व को OCI में दिखाना है. उसी तरह Ind AS 109 है, वो कहता है कुछ इंस्ट्रूमेंट के फेयर वैल्यू चेंज को OCI में दिखाना है. तो हमें अलाउ कर रहे हैं तो हम वहाँ प्रेजेंट करेंगे. इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो गई है. इसमें भी दो टाइप के होते हैं. OCI में दो टाइप के प्रेजेंटेशन होते हैं. एक होता है those which can be recycled to P&L account and those which cannot be recycled. बाद में उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं और इसको रिसाइकल कर सकते हैं. ठीक है. तो जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल अकाउंट बनाओगे उसमें यहाँ पे 4 आइटम्स होते हैं और इसमें 5 आइटम्स होते हैं. अब इनके नाम मैं नहीं लिखूंगा, काफ़ी बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड नाम हैं. वो हमने शेड्यूल 3 डिवीज़न 2 में डिस्कस कर लिया, लिख लिया, कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिए हैं. तो इसके ऊपर अभी थोड़ी देर तक और चर्चा नहीं करते हैं. हो सकता है बाद में किसी क्वेश्चन में आएगा तब देखेंगे. नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ ओनर. ओनर आर दी होल्डर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाइड एज इक्विटी. जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करते हैं दे आर ओनर. सो बेसिकली इट विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल. बट आप Ind AS 109 और Ind AS 32 में देखेंगे कुछ और कैटेगरी के भी इन्वेस्टर को हम इक्विटी में लिखते हैं. उसके बारे में अगेन थोड़ी चर्चा बाद में होगी. व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट और लॉस इज द टोटल ऑफ इनकम लेस एक्सपेंस. टोटल ऑफ इनकम लेस एक्सपेंस. तो ये तो आपको बचपन से सिखाया गया है. प्रॉफिट एंड लॉस में हम यहाँ पे पहले लिखते हैं रेवेन्यू, अदर इनकम माइनस एक्सपेंसेस, दैट गिव्स मी प्रॉफिट. डज इट इंक्लूड OCI? नहीं. OCI is section 2 excluding the component of other comprehensive income. Okay. Reclassification adjustment. Reclassification adjustment मतलब हम उसको OCI से P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. अमाउंट reclassification adjustments are amount reclassified to P&L अकाउंट. यानी कुछ आइटम को Ind AS अलाउ करता है कि वो OCI से P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. OCI से P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. जैसे एक एग्जांपल फॉरेन एक्सचेंज का है. फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस. इसको हम Ind AS 21 में देखेंगे. तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसको हम OCI से P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इसको हम बोलेंगे रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट. कुछ ट्रांजेक्शन्स को अलाउ किया गया है. अमाउंट रिक्लासिफाइड टू P&L अकाउंट इन करंट पीरियड दैट वर रिकॉग्नाइज्ड इन OCI इन द करंट और प्रीवियस पीरियड. यानी जो पहले OCI में रिकॉग्नाइज थे अब उसको हम P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं. तो वो कब करते हैं वो अलग अलग स्टैंडर्ड में उसके बारे में बताया जाएगा. तो अभी फ़िलहाल ये OCI पे बहुत ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे बिकॉज हर एक आइटम एक एक स्टैंडर्ड में आने वाला है. फिर नेक्स्ट है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. सो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का अगर मैथ्स पूछो तो इट इज़ प्रॉफिट और लॉस प्लस OCI. दैट इज़ कॉल्ड TCI. total comprehensive income. Change in equity during a period resulting from transaction and other events other than those changes resulting from transaction with owners in their capacity as owner. तो काफ़ी भारी भरकम डेफिनेशन है.
लेकिन इसका मतलब है एक तो जो आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ और एक जो OCI हुआ, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो दैट इंक्रीजेस द इक्विटी। अगर आप शेयर इशू करेंगे दैट विल नॉट इंक्रीज द इक्विटी because that is a transaction with owner. Dividend paid is not a part of total comprehensive income because that is a transaction with owner. तो यहाँ पर increase in equity और change in equity but not due to transaction with owner. अगर आपने शेयर इशू करके कैपिटल बढ़ाया तो क्या बात हुई, उसी का पैसा है। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो यस, यहाँ पे शेयर होल्डर को खुशी होगी क्योंकि उसने कुछ कैपिटल नहीं दिया बट उसका इक्विटी बढ़ गया। एक क्वेश्चन का जवाब शायद हमने ऑलरेडी दे दिया है, एक बार फिर से। व्हाट कंप्राइजेस अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होते हैं, अगर ये थियरी क्वेश्चन आ गया या आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया तो स्टूडेंट जनरली या तो दो बोलता है, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, कुछ महारथी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और अगर ज़्यादा ज्ञानी हो तो नोट्स भी बोल देता है। ठीक है, तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि व्हाट कंप्राइज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको पहला बोलना है बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द पीरियड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये एक पर्टिकुलर डे का होता है एंड ऑफ द पीरियड, ये एक पर्टिकुलर पीरियड का होता है। तो क्वार्टरली हो सकता है, अगर कंपनी क्वार्टरली रिपोर्ट्स बनाती है, इंडिया में लिस्टेड कंपनी क्वार्टरली रिपोर्ट्स बनाती है, या एक पीरियड का एक एनुअल हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है। उसी तरह स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, दैट इज ऑल्सो फॉर द पीरियड। वो एक पीरियड का होता है, उसमें हम दिखाते हैं कि इस साल शेयर कितने इशू हुए हैं, डिविडेंड कितना दिया गया, प्रॉफिट कितना हुआ। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इट इज ऑल्सो फॉर द पीरियड, ये भी एक पर्टिकुलर पीरियड की स्टोरी बताता है। एंड नोट्स, तो इन नोट्स भी आपको बोलना है। नोट्स में हम क्या दिखाते हैं, अ समरी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन। एंड वन मोर थिंग, वेट, बट ये हर बार नहीं होता है, एडिशनल बैलेंस शीट, a balance sheet at the beginning of the earliest comparative period। ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ सिचुएशन में कंपनी को एक एडिशनल बैलेंस शीट देनी पड़ती है एट द बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट कंपैरेटिव पीरियड। अर्लीस्ट कंपैरेटिव पीरियड का मतलब अगर मेरी करंट ईयर की बैलेंस शीट का डेट है 31/12/22, तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट का डेट होगा 31/12/2021 और इसका बिगिनिंग पीरियड होगा 1 जनवरी 2021। तो आपको ये एक्स्ट्रा बैलेंस शीट देनी होगी, सिर्फ बैलेंस शीट, P&L अकाउंट एक्स्ट्रा नहीं देना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्स्ट्रा नहीं देना है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं एडिशनल बैलेंस शीट। कंपैरिजन के लिए या अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो एडिशनल बैलेंस शीट कब देनी है, अगर ये थ्योरी क्वेश्चन आपसे पूछे कोई, या एग्ज़ाम में पूछे, या आपके इंटरव्यू में पूछे कि आप तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पास करके आए हो, ज़रा बताओ कंपनी को एडिशनल बैलेंस शीट कब देनी पड़ सकती है, तो आपको बोलना है कि अगर कंपनी ने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी रिट्रोस्पेक्टिवली चेंज किया है, रिट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हर एक स्टैंडर्ड में आप जब जाओगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि कौन सी पॉलिसी को रिट्रोस्पेक्टिवली चेंज करना है, किसको प्रोस्पेक्टिवली करना है। यूजुअली अगर आप वॉलंटरली चेंज कर रहे हैं कोई अकाउंटिंग पॉलिसी को, तो यूजुअली उसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव होगा, यानी फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड जब वो ट्रांजैक्शन हुआ था वहाँ से अब तक। या फिर रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट ऑफ आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपने कोई एरर किया है जिसको हम बोलते हैं इस स्टैंडर्ड में प्रायर पीरियड एरर,
तो स्टैंडर्ड बोलता है तुमको उस साल जाना है जहाँ पर ये एरर कमिट हुआ है और उसको एडजस्ट करते करते लेकर आना है आपको। या फिर कोई आइटम आप रिक्लासीफाई कर देते हैं, कोई आइटम अगर आप रिक्लासीफाई करते हैं तो फिर आपको एक और बैलेंस शीट देनी है, ठीक है। तो पहला है अकाउंटिंग पॉलिसी, दूसरा है रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट ऑफ आइटम यानी प्रायर पीरियड एरर, और तीसरा है रिक्लासिफिकेशन ऑफ आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तब एडिशनल बैलेंस शीट देनी पड़ती है। एडिशनल बैलेंस शीट के ऊपर मैं एक क्वेश्चन आपको बाद में करवाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल द अबव आइटम शुड बी प्रेजेंटेड विथ इक्वल प्रोमिनेंस। एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि जब भी आप कुछ प्रेजेंट करोगे प्रैक्टिकली तो इक्वल प्रोमिनेंस का मतलब है कि जैसे आपने सेल्स लिखा ऐसे बड़े बड़े फॉन्ट में 200 करोड़ और नीचे यहाँ पे लॉस आ गया तो आपने ऐसे लिख दिया -20 करोड़ ताकि लोगों को दिखे ही नहीं। ऐसा नहीं कर सकते, फिर पूरा फॉन्ट एक जैसा यूज़ करना है, उसकी साइज़ एक जैसे रखनी ताकि लोगों को इक्वली प्रोमिनेंस के साथ दिख सके। Many reports are presented by the management along with financial statement by most of the entities. आप एनुअल रिपोर्ट देखोगे तो उसमें डायरेक्टर्स रिपोर्ट होता है। क्या डायरेक्टर रिपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या उसमें मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस हो सकता है, या उसमें कुछ ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड रिपोर्ट हो सकते हैं, कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट हो सकते हैं। ओके, इन्वायरमेंट, कुछ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग होती है जो आपका सिलेबस का एक चैप्टर है, बाद में डिस्कस करेंगे। ये सब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? नहीं। तो बहुत सारा आपको रिपोर्ट मिलता है एनुअल रिपोर्ट्स में, बट ऑल दीज आर नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जस्ट बिकॉज कि वो एनुअल रिपोर्ट में है। सो दे आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस इंडियस, दे आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस इंडियस। हो सकता है उसमें कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकता है उसमें कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, बट दे आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कवर करता है। अब आप देखेंगे नीचे में एक बहुत ही सुंदर समरी बनी हुई है। तो एग्ज़ाम में हमारे पास समय कम रहता है, तो पूरा 2 पेज पढ़ने की जगह क्या करना है, कल सुबह एग्ज़ाम है या कल दोपहर को एग्ज़ाम है तो पहले 2 पेज मत पढ़ना, ये पढ़ लेना, इसमें काफ़ी हद तक आपका काम हो जाएगा। सेम डायग्राम आपकी बुक में भी बना हुआ है, तो डोंट वरी, लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन फोकस है समझना, और जितना हम समझेंगे उतना अच्छा रहेगा। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नोट्स। ये 5 तो आप जरूर बोलना। नोट्स विल कंप्राइज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन। तो देखा, सब कुछ आ गया। बैलेंस शीट बनेगा एट द एंड ऑफ द पीरियड, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, SOCIE एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये बनेगा फॉर द पीरियड। ओके, बैलेंस शीट में क्या करना है, of the preceding period comparative information for all the amount reported in the current financial statement। तो एक comparative balance sheet भी देनी है, और उसी तरह से statement of P&L account, SOCIE और कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी एक comparative previous year का देना है। लेकिन एक एडिशनल बैलेंस शीट आपको देनी पड़ सकती है एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड। कब? अगर कोई कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करती है और देयर इज अ रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट ऑफ आइटम और देयर इज अ रीक्लासिफिकेशन ऑफ एन आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नोट्स में क्या क्या देना है आपको? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन फॉर नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन शैल बी गिवन एंड इफ इट इज़ रेलेवेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द करंट पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जितना आप डिटेल में नोट्स दे सकते हैं। ऑफ कोर्स मटेरियलिटी का ध्यान रखना है, ऑब्सक्योर नहीं करना है जिससे यूज़र को फ़ायदा हो, और जो
इंड एस में रिक्वायर्ड हो, जो लॉ में रिक्वायर्ड हो, वो इंफॉर्मेशन नोट्स में देना है. सो दैट इज आवर बेसिक डिस्कशन ऑफ व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब अगली बार नेक्स्ट लेक्चर में हम पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट्स देखेंगे. सो टिल देन, गुड बाय, गुड डे, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.